have seen me traveling the length and the breadth of country on elections. You've seen me doing a lot of typological analysis and election analysis. Traveling is something which is not new to me. But this time, India's fight on COVID is extremely unprecedented. India has done exceedingly well. But what I found was that the view on COVID was a very Delhi-centric view. The analysis on COVID was a very Delhi-centric analysis. That's why I thought that this time it is needed to represent the voice of the people on ground, to represent the humanitarian angle on the ground. सरकार की तरफ से कोई आया जिसने गांव में साफ सफाई करवाया, कुछ किया? नहीं वो नहीं दिया। डॉक्टर आपके पास आए? नहीं, कोई भी नहीं आया सर। अगर हमारा टेस्ट नहीं हुआ कैसे चलेगा पता कि हमारा अंदर कोरोना वायरस है। यहाँ जंगल में बैठे हुए हैं। क्या आपने जब यहाँ की सरकार के लोगों को नुमाइंदों को बोला तो उन्होंने क्या बोला? वो डॉक्टर नहीं है। सभी जब आता है ना सारे बंदा ऐसे जंगल में रह के घस जाता है। This is why I packed my bag and traveled the length and the breadth of country on COVID. I traveled from Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh. I traveled Uttar Pradesh, Bihar. But there was one state which was missing from the national narrative. It is the state which was at the forefront of freedom struggle. Yes, I am talking about the state of Bengal. बंगाल के अंदर एंटर कर चुके हैं मैं और मेरी पूरी टीम जो है। इस वक्त हम मौजूद है बंगाल में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मालतीपुर विधानसभा के अंदर जो मालदा में आता है। ये वापस अपने गांव आए थे, पर इनका सूडो मतलब एक रेप्लिकेटेड क्वारंटाइन सेंटर अगर आप देखें तो ये है। अगर कुछ करना हो चेकअप वुकअप मतलब कि जो गांव में जैसे कोई दिक्कत ना हो तो बताया कि हम लोग इधर मतलब कि जो 3 दिन से बंद हो गया है, चेकअप वुकअप सब बंद हो गया है। कोई भी अगर बाहर से उनके राज्य के लोग आते हैं तो उनको खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, डॉक्टर, ये सब दिया जा रहा है। आपको इनमें से क्या दिया? कुछ भी नहीं। मेरे पीछे क्वारंटाइन सेंटर है। यहाँ पे जो मजदूर केरला से अलग अलग जगह से आए हैं वो यहाँ पे हैं। मैं राजस्थान से हूँ। मिर्जापुर से। अच्छा, आप किधर से आए? पंजाब से आए। कोई केरला, तमिलनाडु से आए? बंगाल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड का डर या मास्क नहीं कुछ दिख रहा है। यहाँ पे सब कुछ एज इट इज खुला हुआ है, जैसा कि ईस्ट बिहार के अंदर भी हमें देखने को मिला था। लग रहा 14 दिन स्कूल में रख रहा है, खाना पीना दे रहा है ना। बंगाल नहीं है सर, नहीं बंगाल में नहीं है सर। Somehow the politicking in Bengal took over. The government in Bengal was not releasing data transparently, and that's why people had a lot of suspicion. Well, how truth was the data? How much truth was there in the data? And what was the reality of Bengal? I thought it was needed to go on the ground. That is where I traveled to Bengal. Now, traveling to Bengal is not traveling to Calcutta or traveling around Calcutta. It is extremely important to note that Bengal also suffered devastation in Cyclone Amphan. This is why the view on Bengal had to be a people-centric one. This is why we traveled to Bengal. We traveled in the interiors of Bengal, from Malda to Dinajpur to Bengal. And all this we present to you story from ground zero, voices from ground zero, from inside the quarantine centers to inside the villages. And this is what we have for you. Inside Bengal, ground zero, truth of Bengal. बंगाल में पूरा खुल दो दुकान, पूरा चला दो दुकान। The last time I visited Bengal was right after the 2019 election results were announced. The political temperature was at its peak. A lot has changed in the last 1 year, but what hasn't is the suffering of the poor in the state. The pandemic, coupled with the devastating impact of Cyclone Amphan, has only made things worse for them. On the 29th of May, I began my journey by road from Delhi to Bengal. After coming across a few accounts of complete mismanagement in social media, I wanted to see for myself, not Kolkata. My first destination was Malda in North Bengal. आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ मालतीपुर विधानसभा के अंदर जो मालदा में आता है, और इसमें मैं जितारपुर के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं क्वारंटाइन सेंटर के बाहर हूँ। The first quarantine center I visited was in a village called Jitarpur in Maltipur Assembly. Migrant workers who returned from different states were kept in a place that looked like this filth strewn everywhere. हम 60 घंटे का सफ़र करके करीबन दिल्ली से आए यहाँ पे, और इस वक्त हम मालदा में मौजूद हैं, जितारपुर मौजूद हैं, और मेरे पीछे क्वारंटाइन सेंटर है। यहाँ पे जो मजदूर केरला से अलग अलग जगह से आए हैं वो यहाँ पे हैं। ये क्वारंटाइन सेंटर आप अगर देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा क्वारंटाइन सेंटर है, और मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा
यहाँ पे क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या सुविधाएं नहीं मिल रही, कब ये आए थे, क्या ये खुश हैं जिस तरीके से सरकार इनको ट्रीट कर रही है। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग मिर्जापुर से आए हैं। मिर्जापुर से आए हैं। हाँ, अच्छा एक चीज बताइए कि यहाँ पे कब आए थे आप? हम लोग करीब 24 तारीख को यहाँ 24 तारीख को, आज 1 जून होने को आ गई है। हाँ। तब से यहाँ पे क्या आपको पानी मिल पा रहा है, सब कुछ मिल पा रहा है? कुछ नहीं मिल रहा हम लोग को, कोई सुविधा जो नहीं मिल रहा। आप क्या सुविधा आ रही है? कुछ नहीं आ रहा है कुछ। जैसे क्या? जैसे कि आगे तो मेडिकल होना चाहिए, वो भी नहीं है। अभी तक आपका नहीं हुआ? नहीं हुआ है। तो आप 7 दिन से यहाँ पे हैं, कि आपका मेडिकल हुआ है? नहीं हुआ आपका किसका मेडिकल हुआ है? आप देख सकते हैं कि 7 दिन से क्वारंटाइन सेंटर पे ये लोग मौजूद हैं और इनका मेडिकल तक नहीं हुआ है। एक चीज मुझे बताइए कि यहाँ पे आप लोग जब 7 दिन से आए तो कोई भी डॉक्टर आपको देखने नहीं आया? नहीं आया। आप में से लोग कहा, जैसे ये मिर्जापुर से, आप कहाँ से? मैं राजस्थान से है। राजस्थान से आए आप? मिर्जापुर से। मिर्जापुर से। तो आप में से कौन लोग यूपी से आए? मिर्जापुर से लगता है आप लोग आए। अच्छा, आप किधर से आए? पंजाब से आए। कोई केरला तमिलनाडु से आए? चेन्नई से आए। सर देखिए, यहाँ पे चेन्नई से, तमिलनाडु से, यहाँ पे मिर्जापुर से, अलग अलग जगह से वापस अपने यहाँ पे गांव में ये लोग आए हुए हैं, पर 7 दिन हो चुका है, इनका मेडिकल नहीं हुआ। तो क्यों नहीं मेडिकल किया? डॉक्टर किया आपको, जैसे यहाँ पे आप आए तो क्या सरकार ने क्या किया? कुछ तो नहीं किया सर। आप नजर आइए, बताइए। बोलता है यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। अच्छा। एक ही डॉक्टर है, कहाँ देखेगा? यहाँ आएगा ना वहाँ देखेगा। इसी वजह से तो आप लोग 7 दिन से यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिल रहा है। कोई दवाई मिली है? कुछ नहीं, अपना घर से मंगा के खाना खा रहे हैं। अच्छा, खाना भी नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। अपना घर से खाना मिलता है। पानी भी नहीं मिल रहा है? पानी भी नहीं। तो एक ही बताइए कि आपको यहाँ पे ना डॉक्टर मिला है, यहाँ पे आपको ना क्या कहते हैं कुछ ढंग से पानी मिल पा रहा है, दवाई मिल पा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके के बंजर उसमें रह के क्या मिल रहा है? मिल रहा है ना, वो सुरक्षा सेवा हो रहा है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, सुरक्षा के लिए रखा है यहाँ पे। हाँ। क्या अपना कुछ नहीं मिल रहा है। बोला यहाँ पे रहो, 14 दिन रहो, 14 दिन के बाद अपना घर जाओ। तो एक ही बताइए, अगर 14 दिन में आप लोग यहाँ पे हैं, तो अगर आपका टेस्ट नहीं हो रहा है तो फिर पता कैसे चलेगा? बात तो वही है सर, बात तो वही है। अगर 14 दिन हम यहाँ पर रहेंगे, कंटिन्यू 14 दिन रह के अपना घर जाते हैं, अगर हमारा टेस्ट नहीं हुआ कैसे चलेगा पता कि हमारा अंदर कोरोना वायरस है? तो क्या आपने जब यहाँ की सरकार के लोगों को नुमाइंदों को बोला तो उन्होंने क्या बोला? वो डॉक्टर नहीं है, एक ही डॉक्टर है, कहाँ से लाएंगे देखिए डॉक्टर? कि यहाँ पे डॉक्टर की इतनी भारी कमी है, और डॉक्टर की इतनी कमी होने के कारण यहाँ पे इनका टेस्ट तक नहीं हुआ है। दैट इज अ वेरी रॉन्ग। मतलब 14 दिन, इनको 7 दिन, 24 तारीख को ये लोग आए थे, आज 1 जून हो गया, 7 दिन कंप्लीट हो गए, यही नहीं पता, डॉक्टर ही नहीं आया हुआ है। और आप मान लीजिए ऐसे 14 दिन अगर गुजर जाएंगे और इनको यही नहीं पता चलेगा कि इनको कोविड है या नहीं है, तो कितना बड़ी नाइंसाफी है ये। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे और एक चीज़ बताइए, तो यहाँ पे जैसे ये पूरा सेंटर है, तो यहाँ पे क्या क्या सुविधा मिल रही है, क्या मिलता है आप लोग को, जैसे ये जो घर पे नहीं मिल रहा, तो आप बता पाएगा? यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है। तो सुबह से शाम तक जैसे क्या होता है, दिनचर्या बताइए, क्या करते हैं यहाँ पे? कोई भी सरकार का व्यक्ति यहाँ पे आपके देखता है कि नहीं नहीं कोई नहीं आता? हो गया 7 दिन हम लोग अंदर कर दिया है, 7 दिन के बाद आज दर्शन दे रहा है। तो 7 दिन में कोई नहीं आया? नहीं और एक आदमी 14 दिन के बाद निकला है, और एक आदमी 14 दिन के बाद निकला है, उसको कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं, अपने से 14 दिन हुआ और निकल अच्छा, गया। आप लोग को क्या हल्दी, दूध, गर्म पानी कुछ नहीं? किस को हल्दी दूध यहाँ पे मिल रहा है? अच्छा, गर्म पानी? घर से मंगा रहे हैं, अपने घर से गर्म पानी करके यहाँ लाते हैं और खाते हैं। आप देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी नेग्लिजेंस है, ना गर्म पानी मिल रहा है ना। अच्छा, आपने से पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आप लोग को कोई सैनिटाइजर मिला है यहाँ पे? सैनिटाइजर। अच्छा, तो पानी जो आता है, क्या पानी आप लोग को प्रॉपर टाइम पे आता है? साफ सफाई मेंटेन करी जा रही है? कोई साफ सफाई करने वाला आता है? नहीं, साफ सफाई करने वाला नहीं आता? कुछ नहीं। अपने से साफ सफाई करके वो कल का पानी खाते हैं। What I saw in the quarantine center in Jitarpur village shocked me. Some people I met there told me the situation is worse in the interiors. In a place called Ratua is even worse. So I went to see for myself, only to find a badly managed quarantine center in the middle of a jungle. और इस वक्त मैं रतुआ विधानसभा के अंदर हूँ, और
दुख की बात यह है कि यहाँ पे मैं कुछ लोगों के साथ हूँ, ये बाहर से दूर से आए हुए हैं, ये वापस अपने गांव आए थे, पर इनका सूडो मतलब एक रेप्लिकेटेड क्वारंटाइन सेंटर अगर आप देखें तो ये है। जी हाँ, जंगल के बीच में कुछ लोग आज आए हुए हैं, कुछ थोड़े समय पहले आए हुए थे, इनको गांव के अंदर नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं चाहूँगा कि पेनोरमिक व्यू दिखाया जाए पहले, तो ये दिस इज़ द क्वारंटाइन सेंटर, जो आप देख सकते हैं क्वारंटाइन सेंटर के तरीके से बिहेव कर रहा है। दुख की बात यह है कि यहाँ पे लोग जो है उनको अपनी ये पूरा दिन बिताना पड़ता है। मतलब जब रात को महिलाएं और बच्चे जब सोते होंगे तो उनको कितने मच्छर काटते होंगे, क्या समस्या होती होंगी, आप ये जायज़ा लगा सकते हैं। अब इस वक्त मैं लोगों से बात करूँगा, ये मेरा एक ब्रॉड व्यू है, और अभी मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कि जंगल के बीच में ये जो सूडो क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, जो इनके साथ में बहुत बड़ा छलावा है मेरी नज़र में, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसे अपना ज़िंदगी इस पर व्यतीत करें। आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जो है कब आए हैं? जी सर, हम लोग आज ही आया हूँ। एक चीज़ मुझे बताइए कि आप कहाँ से आए? जी सर, हम लोग हरियाणा राज्य से आया हूँ। हरियाणा राज्य से आए, तो आप लोग को सरकार ने कुछ रुकने की स्पेशल व्यवस्था नहीं करी है? सर, वहाँ हरियाणा राज्यों से हम लोग को मालदा टाउन तक यानी कि रतुआ। बंगाल सरकार ने यहाँ पे जैसे अलग अलग राज्यों में कोई आता है तो कुछ रुकने की व्यवस्था नहीं करी? नहीं, जैसे हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं करी। तो आप कब आए? आज ही आया हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे आप लोग रह रहे हैं? हाँ, यहाँ पे आप लोग को क्या क्या समस्या है? सोने की समस्या है, बहुत सारे समस्या है, लाइट भी नहीं है। तो यहाँ पे जब रात को तो पूरा अंधेरा हो जाता होगा, तो यहाँ पे कैसे मच्छर आते हैं? क्या करेंगे, गरीब आदमी, आप जो जैसे बोलते हैं यहाँ का आदमी वैसे हम लोग करते हैं। सरकार ने आपके लिए अलग से क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाया है जहाँ पे डॉक्टर हो? कोई डॉक्टर आपके पास आया? नहीं, कोई भी नहीं आया सर, कोई भी नहीं आया। हम लोग ऐसे यहाँ जंगल में बैठे हुए हैं, जंगल में नहा धो के आप खाना वाना खाए हैं, सोने के लिए इधर आप देखते हो मिट्टी दुबली घास होता है, वो सब में हम लोग लेटते हैं। इससे तो आपको और बीमारी होने की आशंका होती। तो आपने सरकार को ये जब बोला तो सरकार क्या कहती? सरकार किसी तो हम लोग को मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा है। हम लोग बैठे हुए हैं, भूख लग गया 24 घंटे से, हम लोग कितना भूख लगा, जब फोन किया तो खाने। No food, no water, no electricity, not even basic sanitation. Migrant workers who've returned from other states just dumped here. They say even doctors don't visit them. जैसे कि एक बाकी राज्यों के अंदर ये नियम और ये कायदा ये है कि कोई भी अगर बाहर से उनके राज्य के लोग आते हैं तो उनको खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, डॉक्टर, ये सब दिया जा रहा है। आपको इनमें से क्या दिया? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। और आप कहाँ से आई हैं? वो भी हरियाणा से आया। हरियाणा में क्या करती थी आप? हम करते थे मजबूरी की। मैं और जानना चाहता हूँ, तो ये एक आप देख सकते हैं, और थोड़ा बात करने के पहले, कि जंगल में यहाँ पे अगर लोगों को रखा जा रहा है, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आप पीछे देखिए, यहाँ पे जो है किस तरीके से कपड़े इनके पड़े हुए हैं, यहाँ पे इनको रहना पड़ता है। यहाँ बास पे नदी पे ये लोग नहाते हैं। दिस इज एज बैड एज इट कैन गेट, इज व्हाट आई कैन टेल यू। और मैं बात करने की कोशिश करूँगा लोगों से और जानने की कोशिश करूँगा। यहाँ देखिए आप, कीचड़ है, तो मतलब रात को जब यहाँ पे अगर रात हो जाती होगी, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ सर, हम शुक्रवार का आए। शुक्रवार से आप आए हुए? हाँ। तो आप यहीं पे सोए? हाँ। एक चीज बताइए, आप जैसे आप लोग आप महिला, तो आपके जो बच्चे ये लोग आप कैसे यहाँ पे रह पाते हैं? क्या यहाँ पे बच्चे भी काटते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती? आ जाया सर, आ जाया, बहुत दिक्कत होती है सर। जैसे क्या? जैसे मच्छर टच्छर, कीड़ा वगैरह, ये सब काटने के लिए बहुत डर होता है। मैं तो बाहर से ना हूँ, मगर भाभी वो भी है, मान लो बाहर से आया, बस चले के बाहर जंगल में कैसे सोएगा? कम से कम घर में अंदर गांव का आदमी घुसने नहीं देता है। अच्छा, तो गांव में घुसेगा तो सरकार ने अलग से रुकने का कुछ ना कराया? कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। सभी जब आता है ना, सारे बंदा ऐसे जंगल में रह के घस जाता है, कोई 10 दिन, कोई 5 दिन ऐसे रोक करके फिर गाँव घुस जाता है। अच्छा, तो जंगल में कोई सरकार की कोई सेंटर नहीं रखा? ना, कोई सेंटर नहीं यहाँ पे। ऐसे तो देख रहा हूँ मैं, गाँव में हूँ, ऐसे चलता है काफी दिन से। और बीमारी हो सकती है इनको? तो क्या करेगा, जो मर्जी यहाँ रहता है, कोई उधर रहता है, कोई उधर रहता है, ऐसे रह के गुजारा करके चले जाता है गाँव। वो बोलता है कि वो सब नहीं छुट्टा हाथ रह ही जाता है, और वही बच्चा लेकर कैसे रहेगा? गाँव वाला तो घुसने नहीं देता है, क्या करेगा, यहीं रोए सोएगा। तो सरकार से जब आपने ऐसा बोला तो सरकार ने कहीं अलग से रुकने की? सरकार कहाँ बोलने जाएंगे, सरकार कहाँ पे, हम लोग का मालूम नहीं है। तो आप देखिए कि यहाँ पे मतलब जो महिला है वो अपने बच्चे के साथ कैसे जंगल के बीच में रह रही होगी। ये गौर नहीं करने की बात है। ये पीड़ा जो है, ये मैं समझ पा रहा हूँ, पर
एग्जैक्टली जिस पीड़ा को ये लोग जी रहे हैं ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपने बोला कि भाई एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला सस्ता भाई जंगल के बीच में स्वाभाविक है, मानवीय दृष्टि से यहाँ पे रहना मुश्किल है। मानवीय दृष्टि से आदमी 1 घंटा रह सकता है, 1.5 घंटा रह सकता है, उनको दिक्कत हो। रात को अपने बच्चे के साथ सोना, यहीं पे खाना, बैठना, मच्छर, जानवर ये सब आ सकते हैं। तो आपने पीड़ा सरकार को नहीं बताई? देखो सर, मतलब कि जो हम लोग बता करके भी हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग तो उधर से कुछ कर नहीं सकते यार, यहाँ गांव घुस नहीं सकते हम लोग का। इसके अलावा कोई मतलब जो दूसरा रास्ता भी नहीं है हम लोग का। Homecoming was supposed to bring a sense of security and comfort. In Bengal under Mamata Banerjee's dispensation, poor and helpless migrant workers say they feel trapped in a system that doesn't care for them, that doesn't care even if women and babies have to live in the most pitiable conditions in facilities set by the state government. अधिकारी कोई आपके पास नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया साहब। हम लोग जिस टाइम बंगाल यहाँ हम लोग घुसे, अपना मतलब कि जो जब अपना थाने पे आए तो डायरेक्ट हम लोग मतलब जो बस से उतर के डायरेक्ट हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में हम लोग जाके बताए कि देखो हम लोग बाहर से आया हूँ, कि जो हम लोग का गांव में कोई मतलब दिक्कत ना हो। भी आपको हॉस्पिटल नहीं ले गए? नहीं, हम लोग खुद मतलब बात से उतर के सारे आदमी खुद गए, खुद ब खुद। तो उसको मतलब कि जो हम उसको बताए कि देखो हम लोग बाहर से आया हूँ, अगर कुछ करना हो चेकअप वेकअप मतलब कि जो गांव में जैसे कोई दिक्कत ना हो, जैसे कोई बता हम लोग को लिख के दो, हम लोग का चेक कर लो और हम लोग का लिख के दो। तो वो बताया कि हम लोग इधर मतलब कि जो 3 दिन से बंद हो गया है, चेकअप वेकअप सब बंद हो गया है, कुछ नहीं होगा। चेकअप भी बंद हो? हाँ, चेकअप ये रतुआ थाना हॉस्पिटल का। हाँ, देखिए चेकअप भी बंद हो? चेकअप बंद हो चुका है, अभी कुछ नहीं होगा। तुम जा करके रहो वहाँ पे 15 दिन घर पे। 15 दिन के अंदर अगर सर्दी जुकाम कुछ आए तो इधर आकर के अपना इलाज करवाओ। आपको गाँव में रहने नहीं दिया सरकार? नहीं, व्यवस्था नहीं? नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे दयनीय स्थिति मैंने तो अभी तक देश में कहीं नहीं देखी कि लोग जब अगर आ रहे हैं तो उनको यहाँ पे जंगल के बीच में ऐसे छोड़ा जा रहा है और सरकार उनका ख्याल नहीं रखती। सवाल ये है कि बंगाल सरकार के इतने जो बड़े वादे हैं उनकी ज़मीनी स्थिति पर वो वादे खोखले दिख रहे हैं। और अगर आपके खुद के जो नागरिक हैं, अगर आपके खुद के जो रेजिडेंट्स हैं, उनको आप ऐसे जंगल के बीच में छोड़ेंगे तो ये बड़ी ही अमानवीय बात है। The more I spoke to villagers and local residents, the more I realized that the ones who need the help most have been left to fend for themselves. Be it ones who've returned to state hoping for better facilities or the ones most deprived and underprivileged. मैं बता दूं कि ये हमारा दायित्व है कि बंगाल को उसी तरीके से दिखाया जाए जैसे बाकी राज्यों को दिखाया जाता है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? हरण मंडल है नाम। हरण मंडल जी, बताइए यहाँ पे आपको अभी पूरा कोरोना चल रहा है, कुछ ममता सरकार से कुछ सुविधा मिली कि कुछ नहीं मिली? ममता सरकार से कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है। और मोदी सरकार कुछ कह रहा है, मोदी सरकार कहता है कि दिया है गरीबों को, आपको कुछ मिला है मोदी सरकार? मोदी सरकार से मिल रहा है, क्या मिल रहा है? महीना में 500 रुपया मिलता है और गैस सिलेंडर वो पैसा भी वो भरता है। अच्छा मिल रहा है? मिल रहा है। तो ये कोरोना काल में जो कोरोना कुछ बीमारी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ सरकार ने कुछ दियो? हमार की दिए मोदी सरकार खेते दिए। क्या दिया मोदी सरकार? आटा चावल दीचे। और ममता? ममता कुछ नहीं देते। क्यों नहीं देता ममता जी? वो तो वो निजे ही पेट भरता नहीं तो किस लिए देगा? पेट नहीं भरता तो किस लिए देगा? तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन लोग को जो खाते के अंदर पैसा या मान लीजिए सुविधा मिल रहा है वो केंद्र सरकार से मिल रहा है, सही कह रहे हैं। और ममता सरकार से चाहते कि और चीज मिले। अच्छा, कुछ ममता सरकार से यहाँ पे कोई सैनिटाइजर कुछ मिला? हाथ धोने वाला कुछ मिला है? ताकि आपको कुछ मिला घर पे कुछ हाथ धोने का? ना कुछ नहीं। ये बीमारी से बच के हमने ये सब पहना कुछ किया? मास्क ना किने लिया छी, नीचे तक किने लिया छी मास्क लिए कुछ सरकार से कुछ मिले? नहीं। In the last 2 months, the Mamata Banerjee's government has been at loggerheads with the centre on almost every issue. Be it COVID figures or migrant crisis.
voices on the ground reveal a reality that the state government doesn't want to acknowledge. Now, if you look at Bengal, what happened in 2019 Lok Sabha election? There was wide-ranging discontent against the state government, and Narendra Modi acted as the hope, and that's why the Bharatiya Janata Party could win 18 to 19 seats in 2019, which was unexpected for many. Now, at this moment in the COVID fight, this is just not the fight of COVID. It is a fight which will also decide the future political course in Bengal. Now, if this current government can take care of the people in a nice manner, when I say nice, it means ensuring that the quarantine centers are apt and proper. It means that enough people are tested. Right now, that is not the situation. It can have a good political wicket in 2021. But if that is not the scenario, you will see Bharatiya Janata Party giving it a very big fight. But this is not about politics. At the end of the day, it is about the people. And people there are suffering on 3 counts. Number 1, the quarantine centers in the interiors are either not working, they are being quarantined in the jungle, or the quarantine centers do not have enough doctors. Number 2, there is not enough sanitization which is taking place in the villages. And number 3, people are not aware of social distancing, people are not aware on how to use the sanitizers, and these 3 pillars make the situation in Bengal a bit worrying. When I return to Delhi after a 4,000-kilometer journey, I hope that these voices reach the state government that espouses the Ma Mati Manu slogan every election. Because it's both sad and ironical that Ma and Manush and suffering in the Mati that seems to have been corrupted by hollow promises. The local administration in Bengal needs to get up. If the local administration in Bengal does not get up, and if politics supersede people's interests, it will be difficult in Bengal. And at the end of the day, whether it is politics or governance, it is about taking care of people's interests. There is urgent attention which is needed on the ground in Bengal. This is me, Pradeep Bhandari. I'm on the way to Delhi. But what we presented to you in Bengal from the inside the quarantine center is the truth of it. Thank you so much for joining me after this 20,000-kilometer journey and knowing the truth of Bengal.